बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। क्लासिकल मैकेनिक्स 2 का आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है, द पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी। ये टेलर की बुक की चैप्टर नंबर 15 में से है और दूसरी रेफरेंस बुक्स हैं टी एल चाओ और थॉर्नटन के, उनके रिलेटिव चैप्टर्स 13 और 14 में से हैं। द पोस्टुलेट्स ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, Einstein proposed two postulates expressing his opinion that all the laws of physics should hold in all inertial frames. And from these postulates, he developed his special theory of relativity. An inertial frame is any reference frame that is a system coordinates x, y, z and time t in which all the laws of physics hold in their usual form. Now, first postulate of his theory, the principle of relativity. First postulate is the principle of relativity. The laws of physics must be the same in all inertial reference frames. If S is an inertial frame and if a second frame S dash moves with constant velocity relative to S, then S dash is also an inertial frame. Second postulate is the constancy of the speed of light. The speed of light in vacuum has the same value, has a constant value, c is equal to 3 into 10 to the power 8 meter per second in all inertial frames, regardless of the velocity of the observer or the velocity of the source emitting the light. Now, first postulate, the principle of relativity. इसको हम एक और वे से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. We can say in another way that the laws of physics are invariant as we transfer our attention from one frame to a second frame that is moving at constant velocity relative to the first. यानी तमाम लॉज ऑफ फिज़िक्स जो हैं वो इनवेरिएंट हैं. ऐसे किसी भी दो फ्रेम्स में जिनमें एक फ्रेम जो है दूसरे फ्रेम के अकॉर्डिंग दूसरे फ्रेम के रिलेटिव कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. इस तरह एक और वे से भी आप इसे डिफाइन कर सकते हैं that there is no such thing as absolute motion. Consider two frames, S attached to the earth and S dash attached to a rocket, coasting at constant velocity relative to the earth. रॉकेट जो है जिसके लिए फ्रेम S डैश हम ले रहे हैं वो रिलेटिव टू अर्थ जिसके लिए हमने फ्रेम S लिया हुआ है उसके रिलेटिव with constant velocity move कर रहा है. A natural question is whether there is any meaningful sense in which we could say that the S is really at rest. क्या हम ये कह सकते हैं कि S जो है वो रियली रेस्ट पे है एंड S डैश इज़ रियली मूविंग. जिस तरह मैंने स्टार्ट में कह दिया है कि फ्रेम S जो है अर्थ से कनेक्टेड है वो रेस्ट पे है और फ्रेम S डैश जो है रॉकेट से कनेक्टेड है. रॉकेट जो विद रिलेटिव टू अर्थ जो है वो मूव कर रहा है. तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो S है दैट इज़ रियली एट रेस्ट एंड S डैश इज़ रियली मूविंग एंड वाइस वर्सा. If the answer was yes, अगर हमारा आंसर ये है कि हम ये कह सकते हैं कि कौन सा रेस्ट पे है कौन सा मूव कर रहा है, देन वी कुड से दैट S इज़ एब्सोल्युटली एट रेस्ट. फिर हम कहेंगे कि S जो है वो एब्सोल्युटली रेस्ट पे है और दूसरा जो है वो एब्सोल्युटली जो है वो मूव कर रहा है, मोशन में है. एंड दैट एनीथिंग मूविंग रिलेटिव टू S इज़ इन एब्सोल्यूट मोशन. हाउएवर, this would contradict the first postulate of relativity, which is all of the laws observable by scientists in S are equally observable by scientists in frame S dash.
Any experiment that can be performed in frame S can equally be performed in S dash. Therefore, no experiment can show which frame is really moving. Relative to the Earth, the rocket is moving, and relative to the rocket, the Earth is moving. And this is all we can say. यानी अब इसका हम सिर्फ इसका ये जवाब दे सकते हैं, हमसे ये नहीं कह सकते कि फ्रेम एस रियली रेस्ट पे है या फ्रेम एस रियली मूविंग है। यानी फ्रेम एस जो है, फ्रेम एस जो है वो एब्सोल्युटली रेस्ट पे है और फ्रेम एस डैश जो है एब्सोल्युटली मोशन में है। हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि रिलेटिव टू अर्थ रॉकेट मूव कर रहा है और रिलेटिव टू रॉकेट अर्थ जो है वो मोशन में है, यानी अर्थ मूव कर रही है। Yet another statement of the first postulate is that among all the inertial frames there is no preferred frame, यानी तमाम inertial frames में हमारे पास कोई preferred frame नहीं है। तमाम फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में, तमाम inertial फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में लॉज ऑफ फिजिक्स में इक्वली एप्लीकेबल हैं। द लॉज ऑफ फिजिक्स single out no one frame as being in any way more special than any other, यानी लॉज ऑफ फिजिक्स के लिए तमाम inertial फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं वो सेम है। किसी को प्रेफर नहीं कर सकते कि फ़लाँ फ्रेम में रिजल्ट्स दूसरे कंपैरेटिवली हैं वो बेहतर होंगे, क्योंकि तमाम लॉज ऑफ फिजिक्स तमाम inertial फ्रेम्स में इक्वली एप्लीकेबल हैं, इनवेरिएंट हैं। Now second postulate, the constancy of the speed of light. Postulate 2 is required by postulate 1. If the speed of light were not the same, if the speed of light was not the same in all inertial frames, then measurements of different speeds would make it possible to distinguish between inertial frames. अगर स्पीड ऑफ लाइट तमाम inertial फ्रेम्स में सेम नहीं है तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि डिफरेंट फ्रेम्स में जो स्पीड्स की मेजरमेंट्स हैं वो डिफरेंट होंगी। एंड अ प्रेफर्ड एब्सोल्यूट फ्रेम कुड बी आइडेंटिफाइड, इसका मतलब है कि एक प्रेफर्ड फ्रेम जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा इस तरह, जो कि विच इज़ इन कंट्रडिक्शन टू postulate 1। तो ये postulate 1 के बिल्कुल ख़िलाफ़ है कि कोई प्रेफर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस एग्जिस्ट करता है या फिर डिफरेंट inertial फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्पीड ऑफ लाइट की मेजरमेंट्स डिफरेंट होंगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू postulate 1। सो postulate 2 इज़ रिक्वायर्ड बाय द postulate 1। Einstein's both postulates encountered several surprising predictions, all of which seem to contradict our daily experience. For example, the phenomena called time dilation, या आगे हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो डेली लाइफ में जो आइंस्टाइन postulates की जो प्रेडिक्शंस हैं डेली लाइफ में वो उन पे बिलीव करना मुश्किल है। These are all logical consequences of the second postulate. Thus, when we have accepted the latter, surprising but indisputably true, we have to accept all of its logical consequences. However, counterintuitive they may seem, second, all of these surprising phenomena, including the second postulate itself, second postulate है ये itself जो है एक सरप्राइजिंग फिनोमेना है कि स्पीड ऑफ लाइट जो है तमाम inertial फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में सेम है, have the indirect property that they become important only when objects travel with the speeds comparable to the speed of light। तो ये तमाम ये फिनोमेना है आइंस्टाइन postulates से, तो ये बेसिकली तमाम फिनोमेना है, इनके लिए ज़रूरी है कि जो ये उन ऑब्जेक्ट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि ट्रैवल कर रहे हैं विद द स्पीड कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट, जबकि हमारी डेली लाइफ में ऐसा नहीं होता है। इन एवरीडे लाइफ विद ऑल स्पीड्स आर वेरी वेरी मच लेस दैन स्पीड ऑफ लाइट सी, सो दीज फिनोमेना सिंपली डू नॉट शो अप।
तो इस तरह हमारी डेली लाइफ में ये फिनोमेना जो है हम ऑब्ज़र्व नहीं करते, इसलिए इन पे बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इन दिस सेंस none of the surprising consequences of Einstein's postulates really conflict with our everyday experience। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, द पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी, जिसमें दो पोस्टुलेट्स हैं। जो फर्स्ट पोस्टुलेट है दैट इज़ करस्पॉन्ड टू प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी, यानी तमाम लॉज ऑफ फिज़िक्स यहाँ इनवेरिएंट हैं, और दूसरा ये रिजेक्ट करता है कि किसी भी एब्सोल्यूट मोशन या एब्सोल्यूट रेस्ट पोजीशन को या फिर किसी भी प्रेफर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एग्जिस्टेंस को। जो सेकंड पोस्टुलेट है दैट इज़ कांस्टेंसी ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, यानी स्पीड ऑफ लाइट जो है तमाम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वो कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट नहीं होगी तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेजरमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होंगी, और फिर एक प्रेफर्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस या एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस एग्जिस्ट करेगा जो कि फर्स्ट पोस्टुलेट्स के ख़िलाफ़ है। अल्लाह हाफिज़।